Good morning, guys. Welcome to Brugesta's Maths Academy. Guys, in this sessions, we are going to discuss Circle chapter in detail. We are going to understand different properties involved and its application. So let's get started immediately with different kind of sums. I'm going to discuss the properties. I'm going to teach you the properties while we solve the sum. So kindly pay attention to all the sums very carefully. Let's get started. So in the first sum, as you observe, beta, angle AOC, carefully देखो बेटा, एंगल AOC पूरा मिला के कितना हुआ 90 डिग्री. बेटा एंगल AOC को अगर ध्यान से देखोगे बेटा, कौन से आर्क में आता है बेटा? AC. ठीक है बेटा, एंगल AOC को अगर ऑब्जर्व करो केयरफुली माय चाइल्ड, so it contains arc AC बेटा. ठीक है. Similarly, we need to find ADC. ADC किधर आता है बेटा? सर्कमफरेंस पे आता है. ADC सर्कमफरेंस पे आता है. So the first property which you should know is angle at center is twice angle at circumference by same arc. So property का नाम क्या है बेटा? Angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. मतलब अगर arc same है, जैसे in this case AC, एक एंगल सेंटर पे है AOC और दूसरा एंगल सर्कमफरेंस पे है ADC. So I can easily say ADC will be half of AOC. बेटा एंगल ADC will be half of AOC. मतलब half of 90 which is 45 in this case. कितना हो जाएगा बेटा? Half of 90 which is 45. आपको समझ में आया बेटा? AOC सेंटर पे, ADC सर्कमफरेंस पे, दोनों में सेम आर्क AC. So we say angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. Angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. भूलना मत. Angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. आर्क सेम होना चाहिए, एक एंगल सेंटर पे, दूसरा एंगल सर्कमफरेंस पे. अंडरस्टूड माय चाइल्ड? फर्स्ट सम समझ में आया? सेंटर पे डबल, सर्कमफरेंस पे आर. ऑन द सेम लाइन लेट्स नेम इट बेटा A, O, B, C एंड D. ओके, ये नाम दिया ABCD. बेटा एंगल AOC कंटेन्स विच आर्क? दिस एंटायर आर्क ADC. ठीक है, तो सेंटर पे AOC, सर्कमफरेंस पे क्या है बेटा? सर्कमफरेंस क्या है? ABC which contain the same arc ADC. ठीक है बेटा, so we can say X is nothing but half of 160 which is 80. Same property, angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. क्या है प्रॉपर्टी का नाम बेटा? Angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. Angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. बेटा आर्क को है ना खुद के लिए पेंसिल से शेड करके रखो तो आपको ज्यादा समझेगा. ठीक है, 1 AOC सेंटर पे 160, तो सर्कमफरेंस पे ABC हाफ of 160 which is 80. Now there is multiple way to find y. Okay, one of the way is, but if you observe carefully, ABCD ये quadrilateral है. ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral whose vertices, all four vertices are on the circumference. ABCD is a quadrilateral whose all four vertices lies on the circumference. So such type of quadrilateral is known as cyclic quadrilateral. When all four vertices lies on the circumference, such quadrilateral is known as cyclic quadrilateral. उसका यूनिक प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का? दैट ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. मैं इधर प्रॉपर्टी लिख देता हूं, ठीक है. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एन
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। मतलब दोनों का अगर मैं ऐड करता हूं बेटा मुझे 180 मिलेगा। सो इन दिस केस x प्लस वाई बिकम्स 180, x प्लस वाई बिकम्स 180, x प्लस वाई बिकम्स 180। ठीक है बेटा, x का वैल्यू 80 मिल गया है बेटा मुझे। सो y का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे 100। y का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे 100। ठीक है बेटा, सो वी गॉट x का वैल्यू एज 80 एंड वी नो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब x प्लस y का वैल्यू कितना होगा 180। तो अगर x 80 तो y 100, x 80 तो y 100। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। सो x प्लस y कितना होगा 180 होगा। अगर x 80 है तो y 100 होगा, x 80 है तो y 100 होगा। ठीक है बेटा, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। x प्लस y इज 180, अगर x 80 है तो y 100 होगा। नाउ LHS बेटा, हियर यू टू प्रूव समथिंग, बहुत इजी है। 3 एंगल y माइनस 2 एंगल x बेटा। सो 3 इंटू वाई कितना है 100 माइनस 2 इंटू एक्स कितना है बेटा 80। सो 300 माइनस 160 विच इज 140 विच इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने उन्होंने कौन सा प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी सीखा कि if all four vertices lies on the circumference, ठीक है, such quadrilateral is known as cyclic quadrilateral। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो सीखा वो क्या था बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सीखा वो क्या था, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफरेंस बाय सेम आर। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सीखा वो क्या था बेटा, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफरेंस बाय सेम आर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या सीखा हम लोगों ने, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। बेटा इन द सर्कल्स के वीडियो लेक्चर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टोटल around 115 sums। ठीक है, so please make sure you go through all the sums very thoroughly बेटा, don't even skip one sum। ये 115 sums किए तो you are done with the chapter very thoroughly, all concepts will be clear। ठीक है बेटा, but make sure you go through all the sums। मैं जब explain कर रहा हूं सभी समझ लो and then try to replicate on your own। ठीक है बेटा, understand the properties, how I'm applying it, ठीक है, and obviously जो भी doubts है you can ask me later। Now the third sum and the new property which we are going to learn, बेटा can you observe AB is a diameter, AB is a diameter। बेटा जब भी diameter आया ना बेटा, हाँ, we all know diameter divides it into two semicircle। ठीक है बेटा, so A and B are the end points, okay, AB is a diameter बेटा। अगर diameter के end points लेके सर्कमफरेंस पे जो एंगल बनता है बेटा, ठीक है, कैन यू ऑब्जर्व एंगल P, तो हम लोग बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। बट कंडीशन क्या है बेटा, एंड पॉइंट शुड बी डायमीटर, एंड पॉइंट शुड बी डायमीटर एंड एंगल शुड बी ऑन सर्कमफरेंस बेटा, एंगल शुड बी ऑन सर्कमफरेंस। तो थर्ड प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू लर्न इज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। Angle in a semicircle is 90 degree. Angle in a semicircle is 90 degree. I'm going to create multiple videos on circles. Please make sure beta you keep on viewing all the videos thoroughly beta, ठीक है। Angle in a semicircle is 90 degree. Angle in a semicircle is 90 degree. Angle in a semicircle is 90 degree beta, ठीक है। How to identify beta, end point should be diameter, एंड पॉइंट शुड बी डायमीटर, और वही डायमीटर लेके जो सर्कमफरेंस पे एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल इन अ सेमीसर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये 90 है, इट इज गिवन, ये गिवन था 45 डिग्री, ये गिवन है बेटा 45 डिग्री। ठीक है, ओके, इट वाज गिवन PBA इज 45 डिग्री। तो ये 90 है मेरा बच्चा, ये 45 है। ठीक है, सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, वी ऑल नो। तो 90 प्लस 45 कितना हुआ बेटा 135। सो एंगल PAB कितना होगा बेटा, एंगल PAB प्लस 90 प्लस 45 इक्वल्स टू 180। क्या रीजन लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 बेटा। सो एंगल PAB प्लस 135 इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल PAB कितना मिलेगा मेरा बच्चा 45 डिग्री। ये अपना फर्स्ट है। सेकेंड, PAB is 45. Now I'm going to teach you the fourth property which is very important,
हाँ, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. क्या है प्रॉपर्टी का नाम? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. सी हाउ आई अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. बेटा देखो ध्यान से देखना. बेटा वी नीड टू फाइंड पी क्यू बी. पी क्यू बी कौन से सेगमेंट में आता है? पीबी. ये ऐसे भी बोल सकते हो, ये आर्क पीबी में कंटेन करता है. एंगल पी क्यू बी सर्कमफरेंस पे. किधर है बेटा? सर्कमफरेंस पे है. हाँ, एंड इट कंटेन्स आर्क पीबी. बेटा वही आर्क लेके, वही सेगमेंट पीबी लेके और कौन सा एंगल बनता है जो सर्कमफरेंस पे भी है? पीएबी. बेटा ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग. बेटा अपने को ढूंढना है पी क्यू बी. इट कंटेन्स विच आर्क या विच सेगमेंट? पीबी. वही सेम आर्क, वही सेम सेगमेंट लेके कौन सा दूसरा एंगल बनता है सर्कमफरेंस पे? पीएबी. ठीक है बेटा. सो देयरफॉर वी से एंगल पीएबी इज इक्वल टू एंगल पीक्यूबी फॉर सिंपल रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा. पीक्यूबी का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 45 डिग्री आएगा. क्या है प्रॉपर्टी का नाम? एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. सो बेटा टिल नाउ वी डिड 4 प्रॉपर्टीज वेरी वेरी थोरली. आराम से देखो बेटा. यू कैन पॉज द वीडियो, ओके, एंड यू कैन प्रैक्टिस द 3 सम्स ऑन योर ओन. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने जो सीखा, लेट अस रिवाइज इट. एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफरेंस बाय सेम आर्क. हाउ टू आइडेंटिफाई? एक एंगल सेंटर पे होगा, दूसरा एंगल सर्कमफरेंस पे होगा, दोनों का सेम आर्क होगा. इन द फर्स्ट सम वी कैन ऑब्जर्व दैट आर्क AC इज सेम. सो AOC will be double of ADC. AOC will be double of ADC. या ADC will be half of AOC. In the second sum हम लोगों ने कौन सा नया प्रॉपर्टी सीखा? एक प्रॉपर्टी जो नया सीखा वो क्या है? When all 4 vertices A, B, C, D lies on the circumference, such quadrilateral are known as cyclic quadrilateral. ठीक है, and opposite angle of cyclic quadrilateral is supplementary. 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 ठीक है बेटा, opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary. Opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary. Opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary. ओके बेटा. सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूनिक प्रॉपर्टी क्या है बेटा? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो x प्लस वाई बिकम्स 180. x का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी 80 मिल चुका था, तो 80 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 एंड y वी गॉट एज 100. ठीक है, एंड देन उन्होंने बोला था कि प्रूव दैट 3a एंगल y माइनस 2 एंगल x इज 140. वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ y एंड x एंड वी गॉट अ रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी एंगल एट अ सेंटर ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफरेंस बाय सेम आर्क. Second, come on guys, opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary. Third property which we did was AB was a diameter. Diameter आया ना दिमाग में, एक चीज आना चाहिए आपके. Diameter आया था तो मोमेंट diameter कम, दिमाग में एक चीज आना चाहिए, that angle in a semicircle is 180. ठीक है, diameter 2 semicircle में डिवाइड करता है. AB is a diameter, so angle APB, but condition क्या होना चाहिए? End point should be diameter and वो एंगल जो बनता है बेटा वो सर्कमफरेंस पे होना चाहिए. तो APB becomes 90 डिग्री. APB becomes 90 डिग्री. ओके, APB becomes 90 डिग्री. बराबर बेटा, APB becomes 90 डिग्री. 45 दिया था PBA, so we got PAB as 45. Sum of all angles of triangle is 180. Now the fourth most important property. Many students we have observed get confused between first property and the fourth property. बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी में एक एंगल सेंटर पे, दूसरा एंगल सर्कमफरेंस पे था, दो सेम आर्क था. In this case also you can say same segment या same arc, but दोनों angles should be on circumference. Then we can say both the angles are equal. So PAB is equals to PQB, angle in same segments are equal. PAB equals to PQB, angle in same segments are equal. PAB equals to PQB, angle in same segments are equal. PAB equals to PQB, angle in same segments are equal. PAB equals to PQB, angle in same segments are equal. PAB equals to PQB, angle in same segments are equal. Same segment क्या था बेटा? PB था. देखा आपने? Same segment क्या था? PB था. So PAB becomes equals to PQB. PAB becomes equals to PQB. Angle in same segments are equal. होप्स आपको ये तीन सम समझ में आए हो बेटा. दिस 3 sums explains the first 4 main properties in case of circles. ठीक है बेटा, इसे ध्यान से अच्छे से करोगे. ठीक है, pause the video. Now try to solve 3 sums on your own. Fine. You can attempt the next 3 sums. Okay. Let me draw the diagrams on the board.
meet angle. But I'll go very, very slowly with this chapter. I just want you to do it very thoroughly, beta. In the description, I am adding my notes also on circles. So you can get access to it anytime. I want you all to attempt first on your own. मैंने सब प्रॉपर्टीज अभी आपको समझा ली है बेटा. बेटा unless they say it's a diameter, don't assume anything. बेटा AB and CD is passing through center O. Okay. AOB and COD are the diameters, beta. Given angle OBD is 40 degrees. Find angle CAO. CAO. बेटा मैं CAO बोलूं या CAB बोलूं, बोथ ऑफ देम आर सेम. चलो अभी फास्ट फास्ट थोड़ा करेंगे बेटा. ओके गाइस, फाइन. आई वॉन्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इफ यू कैन. बेटा देखो, PQR अगर 100 है, PQR अगर 100 है बेटा, PQR अगर 100 है तो ये एंगल कितना बन जाएगा गाइस, टेल मी. अगर PQR अगर 100 है, PQR अगर 100 है बेटा, देखो PQR कौन सा R कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये वाला, ठीक है. एंड इट कम्स अंडर द रिफ्लेक्स एंगल POR. बेटा POR में बोलूं ना, एंगल POR में बोलूं, इट कंसिस्ट ऑफ R PQR. बट मैं अगर रिफ्लेक्स एंगल POR बोलूं ना बेटा, रिफ्लेक्स एंगल POR मैं जिसकी बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्स एंगल POR इट कंसिस्ट ऑफ आर्क, दिस आर्क, ठीक है. मैं इसका नाम दे लेता हूं S. It consists of arc PSR. ठीक है. Understand, many students get confused. अगर मैं POR बोलूं, so for POR the arc is PQR. For angle POR the arc is PQR. It contains PQR. But when I talk about a reflex angle POR, it consists of arc PSR. ठीक है बेटा. तो ये 100 है. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, डबल 2. ठीक है बेटा. तो फर्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्स एंगल POR is twice angle P. Always remember, बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इधर से ध्यान से देख रहा हूं. देखो ये अगर x है तो ये 2x, ठीक है. परफेक्ट बेटा. सिमिलरली ये अगर x है तो रिफ्लेक्स एंगल 2x होगा, ठीक है. मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, तो मैं तुम लोग को बता रहा हूं ये 4 डिफरेंट फिगर्स. ये x है तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है. आर्क देख लेगा, आर्क देख, ठीक है. आर्क देख, आर्क देख, ठीक है बेटा. परफेक्ट बेटा. और एक फिगर, तो ये x है तो ये 2x, ठीक है बेटा. ये सब सेक्टर है. परफेक्ट बेटा. इसलिए जब ये 100 था तो ये वाला रिफ्लेक्स एंगल 200 हो गया. नाउ वी ऑल नो माय चाइल्ड, एंगल एट अ पॉइंट इज 360.
तो ये 160 होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसको मालूम नहीं हो बेटा, एंगल एट अ पॉइंट इज 360 होता है. एंगल एट अ पॉइंट इज 360 होता है. तो अगर ये 200 तो रिमेनिंग कितना होगा, एंगल पी ओवर 160 होगा. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, देखो ध्यान से. OPR क्या है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. क्यों ऐसा बेटा, बिकॉज OP एंड OR आर द रेडियस. OP एंड OR क्या है बेटा, रेडियस है. एंड therefore we can say triangle OPR is an isosceles triangle. Therefore we can say the base angles are equal. Let us name it AA, and this is 160, we already know. Therefore can I say sum of all angles of triangle is 180. So A plus 160 is equals to 180. So 2A equals to 20. So A is 10. ठीक है बेटा. So angle OPR becomes 10 degrees. OPR becomes 10 degrees. OPR becomes 10 degrees. समझ में आया आपको बेटा? फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने कौन सा यूज किया, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस बाय सेम आर्क. फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी यूज किया, एंगल एट अ पॉइंट इज 360, इससे ये 160 हो गया. नाउ इन ट्रायंगल OPR बेटा, OP एंड OR आर रेडियस, सो बेस एंगल हैज टू बिकम इक्वल. आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है. ठीक है. सो बेस एंगल्स आर इक्वल. नाउ आई कैन से A plus 160 is equals to 180. So I get the required answer. Sure. बेटा ये 130 है. सो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180. ये 130 है तो रिमेनिंग कितना होगा बेटा, 50 कहने से बराबर. फर्स्ट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180. एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 बेटा. एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180. एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 माय चाइल्ड. हाँ, तो ये 50 हो गया. 50 प्लस 20 कितना होता है, 70. तो ये 110 हो गया. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180. सो इन ट्राइंगल EDC ये 50, ये 20, 70. तो रिमेनिंग कितना हुआ बेटा, 110. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180. ध्यान से सुनना, 50, 20, 70. तो रिमेनिंग एंगल कितना हुआ, 110. नाउ कैन आई से विद योर परमिशन, BDC and BAC are nothing but angle in same segments. Both the angles are on circumference. So can I say BDC is equals to BAC are the angles in a same segments. BAC is equals to angle BDC is equals to 110. Angle in same segments are equal. BDC is equals to BAC, angle in same segments are equal. BDC is equals to BAC, angle in same segments are equal. BDC is equals to BAC, angle in same segments are equal बेटा. Please बोलो मत. Very easy बेटा. OB and OD are right. So obviously ये isosceles triangle बन गया. Therefore we can say the base angles are equal बेटा. OB and OD are right. So base angles are equal. So if this is 40, this also becomes 40 degrees. OB and OD are right. OB and OD are right. तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. मतलब बेस एंगल्स इक्वल हो गए. सो आई कैन से OB and OD are right. लिसन केयरफुली, OB and OD are right. सो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. सो बेस एंगल्स आर इक्वल 40. ना अगर तुम लोग ध्यान से देखो, केयरफुली देखो बेटा, CDB एंड CAB and CDB are nothing but angle in same segments. अपने को CAO पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली देगा CAB ओनली. ठीक है बेटा. एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. तो पहले ये 40, तो ये 40 क्यों, बिकॉज OB and OD are right. So isosceles triangle, base angles are equal. So 40, 40. Then I can say CDB equals CAB, angle in same segments are equal बेटा. Okay, folks, so आपको समझ में आ रहा हो. Please make sure you try to solve on your own. Okay. Understand the video. Okay. Understand the concept looking at the video and try to do it on your own. Perfect. चलो. Let us move to next sum. चलो, let us do sum number 7, 8, 9. I'll go very slowly in this video. I want you to understand and clear all your concepts very thoroughly. बेटा ये मेरे सर्कल्स के वीडियोस देख लिए गए. मैंने जो 100 सम्स किए हैं, it should be more than sufficient for you to at least understand the concepts of circles. D. But we are trying to discuss 5 sums, so please pay attention. In fact, if you try on your own, it would be great. Chalo, let's get started. Let's get started. For the last 5 sums, I'm going to keep the circle sessions very, very short. Okay, 30 minutes के videos I'll try to create.
सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉल वैल्यू रहे. प्लीज गो थ्रू 1 वीडियोस और 2 वीडियोस पर डे सो दैट योर ऑल कॉन्सेप्ट्स गेट क्लियर वेरी फर्स्ट. ठीक है बेटा, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. बेटा ध्यान से देखो, आपको डेटा पॉइंट क्या दिया है? आपको दिया है एसीडी. बेटा एसीडी कौन से आर्क में आता है? बेटा एडी. एसीडी कौन से आर्क में आता है? एडी. एसीडी कौन से आर्क में आता है? एडी. एसीडी इफ इज 30, वही आर्क एडी लेके कौन सा एंगल बनता है बेटा आपको? एसीडी अगर 30 है तो और कौन सा एंगल बनता है बेटा विद द सेम आर्क एडी? बेटा क्या इसे एबीडी? बेटा ACD and ABD both are the angles which lies on the same segment. तो मैं 30 बोल सकता हूँ बेटा with your permission. ACD consists of arc AD. वही arc AD लेके कौन सा एंगल बनता है circumference पे? ABD. So if ACD is 30, can I say ABD is also 30? बेटा the moment they said AB is a diameter, मैंने आपको बोला था एक प्रॉपर्टी जो आपको याद आनी ही चाहिए वो है angle in a semicircle is 90 degree. Angle in semicircle is 90 degree. The moment they said AB is a diameter, वो diameter के end points लेके कौन सा एंगल बनता है बेटा? ADB. So I can say ADB is 90. Now this is 90, this is 30, 120. Sum of all angles of a triangle is 180. So X हो गया 60 degrees. We all know, ठीक है बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ACD is equal to ABD. Angle in same segments are equal. फिर ये 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री बिकॉज ए बी डायमीटर था एंड ये 90 ये 30 कितना 120 तो रिमेनिंग एंगल हुआ 60. श्योर? बेटा अगर BOC 120 है तो AOC कितना हो जाएगा बेटा? ये BOC 120 है तो AOC और एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन 60 हो गया बेटा. AOC बेटा कौन सा आर्क में आता है सेंटर पे? AOC कौन सा आर्क में आता है बेटा? AOC कौन सा आर्क में आता है? AC. वही सेम आर्क AC लेके सर्कमफ्रेंस पे कौन सा एंगल बनता है बेटा? ADC. अगर AOC 60 है तो ADC कितना होगा बेटा? कम ऑन, सेंटर पे डबल, सर्कमफ्रेंस पे आधा. सेंटर पे डबल, सर्कमफ्रेंस पे आधा. अगर AOC 60 है तो ADC विल बी हाफ ऑफ 60, 30 डिग्री. AOC 60 है तो ADC कितना हो जाएगा बेटा? हाफ हो जाएगा. अगर AOC 60 है तो ADC कितना हो जाएगा बेटा? उसका आधा हो जाएगा 30. AOC 60 ADC उसका आधा 30. AOC 60 ADC उसका आधा 30. Angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. Angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. बेटा angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. तो अगर AOC 60 है ADC उसका आधा हो जाएगा 30. श्योर? होप सो आपको समझ में आया हो बेटा. सेंटर पे डबल, सर्कमफ्रेंस पे आधा. वेरी नाइस था बेटा. सी ऑलवेज फोकस ऑन 2 थिंग्स. 1 डेटा पॉइंट जो दिया है उसके ऊपर और क्या ढूंढना है. अगर EBC 63 है तो मैं देखता हूं EBC कंसिस्ट ऑफ विच आर्क? ये EC. EBC कंसिस्ट ऑफ विच आर्क? EC. वही आर्क EC लेके कौन सा एंगल है सर्कमफ्रेंस पे? 63. तो कैन आई से एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. अगर EBC 63 है तो EAC कितना होगा? 63. अगर EBC 63 है EAC कितना होगा? 63. एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. अभी बेटा AC डायामीटर दिया गया है. द मोमेंट आई से डायामीटर, एक प्रॉपर्टी जो आपको स्ट्राइक होना चाहिए वो क्या है? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. तो आपका AEC कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया. अगर AEC 90 ये 63 तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180. अगर AEC 90 ये 63 सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180. ये कितना हुआ रिमेनिंग? 27. बेटा ये टाइम पास के लिए तो पैरेलल लाइंस नहीं दिया है. इफ दिस इज 27 ऑल्टरनेट एंगल्स में बोल सकता हूं ये भी 27 हो जाएगा बेटा. बराबर बेटा. अगेन रिपीटिंग. देखो बेटा EBC 63 दिया था, वही EC सेगमेंट लेके कौन सा एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे? सर्कमफ्रेंस पे 63. EAC 63 एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल. बराबर बेटा. ये 63 ये 90 कितना हुआ? 153.
ओके, सम ऑफ वन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो ये 27 हो गया, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट ये भी 27 हो गया. श्योर. चलो वी मूव टू नेक्स्ट सम बेटा. वेरी नाइस सम. इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ये 65, ये 70, कितना हुआ टोटल? 135. तो रिमेनिंग एंगल कितना हुआ बेटा बोलो? 45 डिग्री. मेरा बच्चा ध्यान से देखना, अभी ध्यान से सुनना. अगर ये 45, ये 45, तो टोटल एंगल कितना हुआ? टोटल एंगल ADC कितना हुआ? 90 डिग्री. ADC कितना हुआ एंगल? 90 डिग्री. ADC कितना हुआ? 90 डिग्री. और ये बेटा अब तक हम लोग क्या बोल रहे थे कि डायामीटर है इसीलिए 90. अभी हम लोग उल्टा बोलने वाले हैं. Since angle ADC is 90 degree, therefore I can replicate and say AC is a diameter. अब तक हम लोग क्या बोले थे, मैंने क्या प्रॉपर्टी सिखाया था आपको बेटा कि if AB is a diameter या AC is a diameter, we say angle in a semicircle is 90 degree. Diameter है इसीलिए 90. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? We need to prove AC is a diameter. So मैंने क्या बोला कि अरे ADC 90 है, ADC 90 है, इसीलिए AC डायमीटर है. ADC 90 है इसीलिए AC डायमीटर है. ADC 90 है इसलिए AC डायमीटर है. ADC 90 है इसलिए AC डायमीटर है. ओके, हाउ वी प्रूव? एंगल ADC को 90 बना के, इसलिए हम लोगों ने बोला एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, देयरफॉर AC हैज टू बी डायमीटर. एंड सेकेंड पार्ट इज वेरी इजी. अपने को क्या ढूंढना है? ACB, आर्क AB. वही आर्क AB लेके कौन सा एंगल बनता है? ACB इज इक्वल टू ADB. Angle in same segments are equal, which is 40. ACB is equal to ADB. Angle in same segments are equal. Hence, ACB भी 45 डिग्री हो जाएगा. Sure, getting it बेटा? Last sum for today. बेटा प्लीज मेक श्योर ये 11 सम्स अच्छे से आप गो थ्रू करो, अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज. बेटा ये 32 है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 32 डिग्री. ऑल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हो बेटा 32, तो ये भी 32. ओके, ध्यान से सुनना बेटा. नाउ इन ट्राइंगल OBD दिख रहा है बेटा? OBD दिख रहा है बेटा आपको? मैं अपने रफ डायग्राम बना के देता हूं. OBD बेटा ये 32 है बेटा. OB एंड OD आर रेडियस, OB एंड OD आर रेडियस. सो OBD कौन सा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. देयरफॉर एंगल OBD हैज टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो बेस एंगल्स हैज टू बी इक्वल. तो अगर ODB 32 तो OBD भी 32 डिग्री. मतलब ये एंगल कितना बन गया मेरा बच्चा? 32 डिग्री बन गया. ना कहने से 32 प्लस 32 कितना होता है? 64. तो ये एंगल कितना हो गया? BOD कितना हो गया बेटा बोलो? BOD कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस 64, 116 डिग्री. 116 डिग्री. BOD इज 116 बेटा. तो लीनियर पेयर से AOB में 64 बोल सकता हूं. करेक्ट बेटा? AOB में 64 क्यों बोल सकता हूं बेटा? बिकॉज AOB प्लस BOD इज नथिंग बट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन. ये 116 तो ये 64. या फिर तुम लोग ऐसे भी बोल सकते थे AOB is twice angle ADB. AOB is twice angle ADB. Angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. वो भी चलता. AOB is double of ADB. 2 into 32, 64. वो भी चलता. ठीक है बेटा? Now last. बेटा BED. BED consists of which arc? बेटा BDE कौन से आर्क में आता है बेटा? ध्यान से देखो. बेटा BD कौन से आर्क में आता है बेटा? BD कौन से आर्क में आता है बेटा? BD कौन से आर्क में आता है? BD कौन से आर्क में आता है बेटा? BED कौन से आर्क में आता है? BED कौन से आर्क में आता है? BD. वही BD लेके सेंटर या सर्कमफरेंस पे कोई एंगल है, कैन आई से BOD इज एट सेंटर. देखो ध्यान से, मैं रफ फिगर बनाता आपको. देखो ये B है, ये O है, ये D है. BOD 116 है और BED सर्कमफरेंस पे है. तो व्हाट कैन आई से? BED विल बी half of BOD. So it is half of 116, which is 58 degrees. So can I say BED is half of
116 which is BOD which is 58 degrees. ध्यान से देखना बेटा, हाउ आई स्टार्टेड विथ ये 32 तो ये 32 ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है. इन ट्राइंगल ओबीडी, इन ट्राइंगल ओबीडी, इन ट्राइंगल ओबीडी, ये 32 तो ये भी 32. क्यों ऐसा बेटा? बिकॉज OB and OD are radius, OB and OD are radius, so base angle has to be equal. OB and OD are radius, so base angle has to be equal बेटा, ठीक है. तो ये 32 तो ये भी 32 हुआ बेटा. परफेक्ट. 32 प्लस 32 कितना होता है? 64. तो ये 116 हो गया. नाउ लीनियर पैर से ये 64 हो गया. AOB प्लस BOD इज 180, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप AOB इज 2 टाइम्स ADB, आपकी मर्जी. AOB इज 2 टाइम्स ADB, आपकी मर्जी, ठीक है. या फिर लीनियर पैर से भी 64 बोल सकते हो. एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन 180 होता है, तो 116 तो 64. लास्टली BED is at circumference, BOD is at center with the same arc BD. So we say BED circumference we say half of BOD. Angle in same segments are, angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. BED is half of BOD because angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. BED is half of BOD because angle at the center is twice the angle at circumference by same arc. My humble request beta, this all sums are very nice. धीरे धीरे प्रॉपर्टीज भी सीखो and try to solve sums on your own. We'll continue from sum number 12 in our next session. Thank you.